Hello students, myself Ranjana Mishra, Department of Psychology, Marwari College, Ranchi. Stress and health. The connection between our mind and body is apparent when we examine the impact stress has on our life. Feeling stressed out over the relationship, money, or our living situation can create physical health issues. The inverse is also true. Health problem, whether we are daily with high blood pressure or we have diabetes, will also affect our stress level and our mental health. When our brain experiences high degree of stress, our body react accordingly. Stress can trigger the body's response to a perceived threat or danger, known as the fight or flight response. During this reaction, certain hormones like adrenaline and cortisol are released. This speeds the heart rate, slow digestion, stunt blood flow to major muscle groups, and change various other autonomic nervous functions, giving the body a burst of energy and strength. Stress also takes an emotional toll. While some stress may produce feeling of mild anxiety or frustration, prolonged stress can also lead to burnout, anxiety disorders, and depression. Stress is not a distinct medical diagnosis, and there is no single specific treatment for it. Treatment for stress focused on changing the situation, developing stress coping skills, implementing relaxation techniques, and treating symptoms or conditions that may have been caused by chronic stress. तनाव तथा स्वास्थ्य. तनाव मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है. जीवन में अगर तरक्की करनी है तो तनाव भी जरूरी है. इसके बगैर मानव जीवन अवसर का लाभ नहीं ले पाते, परंतु तनाव भी एक सीमा तक हो. हम सभी इसके शिकार होते हैं. यह कभी साधारण मात्रा में उभरकर हमारे जीवन को प्रभावित करता है और कभी यह गंभीर रूप धारण करके हमारे जीवन में उथल-पुथल मचा देता है. तनाव के बुरे प्रभावों को भी हम सभी जान चुके हैं. अमेरिकी अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार खांसी और बुखार से लेकर मसूड़ों की सड़न जैसी बीमारियों के लिए भी यह जिम्मेदार है. ऑब्जर्वर नामक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार लगभग सभी बीमारियों की जड़ तनाव है. शोधकर्ताओं के अनुसार तनाव विपरीत परिस्थितियों के अनुसार ढलने की मानव की क्षमता को प्रभावित करता है. तनाव की परिस्थिति में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन निकलते हैं, जिनके चलते धड़कन तेज होने और श्वास की गति के बढ़ने के अलावा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है. यह हमारे जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल में बदलाव ला देता है तथा मानसिक संतुलन पर आघात करता है. यह स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न कर देता है और हमें बीमारी की ओर अग्रसर कर देता है. इस प्रकार तनाव आज
के जीवन की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। विभिन्न शोधों एवं अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि करीब 75% रोगों का कारण तनाव ही होता है। बचपन से ही किसी न किसी रूप में इस प्रक्रिया से सभी को गुजरना पड़ता है, जिसका भयानक दुष्परिणाम व्यक्ति के शरीर व मन पर पड़ता है। आंत का घाव यानी पेप्टिक अल्सर, अस्थमा, हेडेक, एक्जिमा, गठिया यानी अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, इस तरह की कई मनोदैहिक बीमारियां हैं, इसके ही परिणाम हैं। आज हम सभी जिस दौर पर गुजर रहे हैं, कोरोना के तनाव के कारण स्वास्थ्य यानी हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अतः हमें विभिन्न प्रयासों के माध्यम से इन तनावों से मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए। Although stress is inevitable, it can be manageable when you understand the toll it takes on you and the steps to combat stress. You can take charge of your health and reduce the impact stress has on your life. First, learn to recognize the sign of burnout. High level of stress may place you at a high risk of burnout. Burnout can leave you feeling exhausted and apathic about your job. When you start to feel symptoms of emotional exhaustion, it's a sign that you need to find a way to get a handle on your stress. Second, try to get regular exercise. Physical activity has a big impact on your brain and our body. Whether we enjoy Tai Chi or you want to begin jogging, exercise reduce stress and improve many symptoms associated with mental illness. Next, take care of yourself. Incorporating regular self-care activities into your daily life is essential to stress management. Learn how to take care of your mind, body, and spirit, and discover how to equip yourself to live your best life. Next, practice mindfulness in your life. Mindfulness isn't just something you practice for 10 minutes each day. It can also be a way of life. Discover how to live more mindfully throughout your day so you can become more awake and conscious throughout your life. Okay? तनाव अस्तित्व का एक अंग है, इस पर विजय पाई जा सकती है। जहां जीवन में तनाव की कुछ मात्रा आवश्यक है, क्योंकि तनाव के बिना जीवन नीरस तथा चुनौतियों से रहित होता है। जीवन का सामना करना स्वास्थ्य तंत्र का अभिन्न अंग है। तनाव का सामना करने में निम्नलिखित 5 चरण सहायक हो सकते हैं। प्रथम चरण के अंतर्गत तनाव या दबाव के सामान्य लक्षणों की एक सूची बनाई जा सकती है और उसे जांच उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसके द्वारा व्यक्ति को यह जानने में सहायता मिलेगी कि वह तनाव के स्तर पर कितना उच्च अथवा निम्न है। इस जांच सूची में ऐसे लक्षण जैसे सिर दर्द, गर्दन में दर्द, अन्य पीड़ा, निम्न एकाग्रता, सामान्य दुर्बलता, उदासी की भावना,
बहिष्करण, अशांत निद्रा आदि सम्मिलित हैं। द्वितीय चरण के अंतर्गत साधारण नियमित शारीरिक व्यायाम या अभ्यास आते हैं। इनमें शरीर को फैलाना, पैरों तथा हाथों के व्यायाम, शरीर को आगे और पीछे झुकाना, सुषुम्ना के व्यायाम, पेट के व्यायाम आदि आते हैं। इस प्रकार के व्यायाम मांसपेशियों का तनाव, पीड़ा तथा दर्द को दूर करते हैं एवं शरीर को सुनम्य और लचीला बनाते हैं। इसके अलावा प्राणायाम यानी श्वसन संबंधी व्यायाम, उचित रक्त परिभ्रमण और मन द्वारा बेहतर एकाग्र में सहायता करते हैं। तृतीय चरण के अंतर्गत मन के व्यायाम आते हैं। इसमें मनन तथा एकाग्रता संबंधी व्यायाम आते हैं। चतुर्थ चरण के अंतर्गत भोजन, निद्रा तथा कार्य संबंधी आदतों को ठीक करना चाहिए। कैफीन युक्त पदार्थों को त्यागें तथा अधिक वसा युक्त भोजन लें। अंतिम चरण के अंतर्गत व्यक्ति की सामाजिकरण की आवश्यकताओं की पूर्ति आती है। शौक तथा बहलाव भी सहायक होते हैं। इसके लिए संगीत सुने, जानवरों को पाले, प्रार्थना करें तथा गार्डनिंग आदि कार्य भी तनाव को कम करने में सहायक होते हैं। सामाजिक और सामुदायिक क्रियाओं में भी भाग लेने से शिथिलीकरण में सहायता मिलती है। हर व्यक्ति के अंदर एक शक्ति छिपी रहती है। जरूरत है उस शक्ति को जागृत करने की, तभी चमत्कार होते हैं। इसीलिए सबसे जरूरी है कि हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचानें, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, स्पेशल होता है। समस्याएं जीवन में आती हैं, समस्याओं का सामना करना हमारे हाथ में है और यही हमारे उन्नति के परिचायक होते हैं। यही समस्याएं, यही चुनौतियां हमें हमारे प्रगति के मील के पत्थर साबित होते हैं। इनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने पूरी तन्मयता से, अपने पूरे शक्ति से, पूरे साहस से, पूरे जोर से लगाकर इसका सामना करना चाहिए। पॉजिटिव वे में चलना चाहिए। ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग को प्रश्रय देना चाहिए। ओके, थैंक यू। इस प्रकार आज हम लोगों ने तनाव को दूर करने के विभिन्न साधनों की चर्चा की है। आशा करती हूँ आप लोग इसको समझ गए होंगे। समझने के साथ साथ अपने जीवन में भी इसे उतारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।